کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آج تک نام رسول چلتا ہے۔ اس بی بی کا تعارف کروانے سے پہلے میں اپنی مکمل کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے جملہ ضرور کہوں گا، کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے کہ حقیقت زہرا کسے کہتے ہیں۔ اس بی بی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہے، لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، سننے والا علی ہو، پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ پہلی سطر شیخو پر عقیدہ سنتا بھی ہے، عقیدہ مانتا بھی ہے، عقیدہ سمجھتا بھی ہے۔ سطر پہلی ہے، چہرے کی رنگت سے اندازہ ہوگا کہاں کہاں سطر نے کیسا کیسا اثر کیا ہے۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت فرمایا، آقا زادی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میں نے جملہ کہا جو کعبے سے زیادہ، جو کعبے سے زیادہ، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھ گیا اس نے نو تسلی دے دی کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا پڑھنا چاہیے اور کیسا سننا چاہیے۔ جو ابھی تک چہرے خاموش ہیں کہ دعویٰ بہت بڑا کیا ہے، دلیل اس کے پاس کیا ہے، میں نے لفظ کہا ہے جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اب بھی قرآن منبر پہ لے گیا، اب بھی کہ ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے کلام الہیہ تو بتا تو نے خدا کے گھر کو کتنا پاک پایا، تو خدا نے ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کے ساتھ بطول اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے پاک نہ ہو، جو چیزوں کو پاک کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول کس مستور کو کہتے ہیں؟ کوئی مستور اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی، جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بن سکتا۔ رسول بھی اللہ بناتا ہے، بطول بھی اللہ بناتا ہے۔ کوئی عورت عبادت کر کے عابدہ ہو سکتی ہے، زاہدہ ہو سکتی ہے، بطول نہیں ہو سکتی۔ بخاری صاحب حسن بھائی اگر کہیں کہ بطول کہتے کسے ہیں تو شیخو پورا میں پہلی اگلی سطر کہوں۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا ہے سیدہ اس ہاتھ کو کسی کا محتاج، جو ہر لمحہ پاک ہو، جو کسی چیز سے پاک نہ ہو، جو چیزوں کو پاک کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک نبی کی ماں بھی بطول ہے جسے مریم کہتے ہیں، وہ عیسیٰ کی ماں ہے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول، وہ ہے بطول صغریٰ۔ جو قریب بیٹھے ہو ان کی ذمہ داری تھوڑی۔ سیدہ ہے بطول کبریٰ، یہ ہے چھوٹی بطول، وہ ہے بڑی بطول۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں خیال آئے وہ نبی کی ماں اور چھوٹی، یہ نبی کی بیٹی اور بڑی، دلیل کیا ہے؟ انتظار کرو ابھی پتہ چل جائے گا، تھوڑا عرصہ باقی ہے۔ چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آنے دو۔ جو مات میں بیٹھے ہو یہ ہاتھ بلند کرنا، چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آنے دو، بڑی بطول کا بیٹا بھی آنے دو۔ وقت نماز قریب ہوگا، اس وقت مریم کا بیٹا کہے گا زہرا کا بیٹا میں تیرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بارہویں کے قدموں پہ مریم کا بیٹا سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا اے عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے گیا۔
इंतजार करो। ये जितनी बकवास मेरे 12वें के खिलाफ हो रही है, ये खौफ की वजह से हो रही है। दुश्मन थर थर कांप रहा है। जुल्फकार नियाम से बाहर निकलने वाली है। सिर्फ जिंदों से हिसाब नहीं लिया जाएगा, मुर्दे भी कब्रों से उखाड़े जाए। इंतजार है 12वें का, वो आए। जमाना तो अभी हल्की हल्की तब्दीलियों पे है ना, अभी तो मुल्क की तब्दीलियां आ रही हैं, आसमानी तब्दीलियां तो अभी आने वाली हैं। अभी टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं, अभी फिदा के चोर बाकी हैं। नैब का हिसाब और होता है, इमाम गैब का हिसाब और होता है। बिस्मिल्लाह। कदा कर रहे हैं लोग, शान अबू कराब कदा कर रहे हैं लोग। मौला अली को छोड़ के किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं। जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं। सहीलाल कलंदर अभी तो छोटी अदालतें फैसले कर रही हैं ना, जवान बोलते रहना, जिनका हर हवाले से किसी न किसी मीडिया के साथ ताल्लुक। अभी छोटी अदालतें फैसले कर रही हैं, अभी फ्लैटों के हिसाब हो रहे हैं। अभी अदालतें सर जोड़ के बैठी हैं, पैसा कहां से आया था, किसने खरीदे थे, किसने बेचे थे, कहां से लिए गए थे। अभी अदालतें ये फैसला कर रही हैं। हमें उस अदालत का इंतजार है जब 12वें की अदालत लगेगी, कब्र से निकाल के पूछेगा, बता फदक तेरी दादी का हक था। ये जितनी बकवासात हो रही है, ये खौफ की वजह से हो रही है। दुश्मन डर गया है मेरे 12वें से। मेरी कौम का नौजवान सीना तान के जिया करो। दुनिया घबराए तुम उतने फखर से जियो, इसलिए कि तुम्हारे फखर की सबसे बड़ी बात यह है, उनका था तुम्हारा है। था वाला डर सकता है। मरियम बतूल है लेकिन छोटी, ज़हरा बतूल है लेकिन बड़ी। अगली सदर कहूं अगर इंसाफ कर सकूं, मरियम छोटी क्यों, ज़हरा बड़ी क्यों? मरियम का सिर्फ एक बेटा मासूम, जब सब ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम की मां ने मन्नत मानी थी, अल्लाह बेटा दे दो, अल्लाह के घर की मजावरी के लिए वक्फ करूं। खुदा ने बजाय बेटे के दे दी बेटी। हाथ में पकड़ के कहने लगी, मेरे अल्लाह, मैंने तो तेरे घर की मजावरी करवानी थी, ये तो बेटी है, इसे तेरे घर में कैसे छोड़ूं? माएं बहनें मजलिस में तशरीफ फरमा होती हैं, इशारतन जुमला देने लगा, मेरे मालिक ये बेटी है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। फरमाया छोड़ के आ, बतूल है। किसके जिम्मे लगाऊं? फरमाया जकरिया के। उस दौर में नबी था, अल्लाह का नाम जकरिया था। खुदा ने ड्यूटी लगा दी, बतूल पाल। वैसे भी अल्लाह की बतूल पालने के लिए नबी होना जरूरी है। पाल बतूल, तुझे भेजा किस लिए? जनाब जकरिया ने कहा, मेरे मालिक घर लेके जाऊं? फरमाया अपने घर नहीं, मेरे घर लेके जा। हुजरा बना, वहां मेरी कनीज को छोड़। हुजरा बन गया अल्लाह के घर में, दरवाजा बंद करके, ताला लगा के, चाबी जेब में डाली। तबलीग दीन की खातिर जकरिया चले गए। तबलीग करते करते ज़हन में ख्याल है, वो जिसे छोड़ के आया उसे भूख लगी होगी। जो करीब है तो थोड़ी हिम्मत कर। जल्दी से जनाब जकरिया घर की तरफ दौड़े। ज़ौजा से कहा, जल्दी कर, खाना बना मरियम का। खाना बना, हाथ में खाना लेके दौड़े। अल्लाह के घर के दरवाजे को खोला। दरवाजा खुला, जकरिया की हैरत की इंतहा न रही। मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने।
बे मौसम फल। जनाब ज़करिया देख के कहते हैं मरियम बाहर गई नहीं, बाहर से अंदर कोई आया नहीं, ये खाने कहां से आए, ये फल कहां से आए। कनी से परवरदिगार ने आसमान की तरफ इशारा, जन्नत से आए, अल्लाह ने भेजे। छोटी मरियम, मैंने लफ्ज पहले कहा था छोटी बतूल, अब यहां मैंने रिफत पढ़ी, अजमत पढ़ी, लोग परेशान हो रहे हैं। इससे छोटी बतूल होने का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? जिसके खाने जन्नत से आए वो छोटी हो सकती है? फर्क अभी समझा देता हूं। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत रोटी पहुंचाए उसे ज़हरा कहते हैं। ये तो ताहरुल कादरी भी लिखे गए सूरह दहर की तफसीर में कि ये जो ज़हरा के दरवाजे पे आके रोटियां मांग रहे थे, ये कोई मक्के मदीने के फकीर नहीं थे, बड़े इज्जत वाले चेहरे तशरीफ फरमाए। किबला ज़ाहद बुखारी साहब तशरीफ है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मुझे तो अभी तक इनके दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ में नहीं आए। मैं तो अभी तक उस फकीर को ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। मुझे वो फकीर आता हुआ नजर आया है, जाता हुआ नजर नहीं आया। कहां से लेके फिर कहां चला गया। लेकिन लिखा है ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो ज़हरा के दरवाजे पे रोटी मांगे। मेरी कौम के बच्चे को भी पता है कि फरिश्ते खाते नहीं, सर नहीं, जुबान को जहमत देंगे। फरिश्तों को भूख नहीं लगती। फरिश्ते करते क्या है? हाँ ठीक है, इबादत है इलाहिया। जो क़याम में है वो क़याम में, अपनी मर्जी से रकू भी नहीं कर सकते। जिन्हें अल्लाह ने रकू के लिए मौक़िफ़ रखा वो रकू में रहेंगे, जिनके सजदे के लिए कहा है वो सजदे में रहेंगे। और कानून कुदरत है कि अपना काम उस वक्त छोड़ा जाता है जब उससे अफजल काम मिले। यह है थोड़ी सी जहन के भटकने का खतरा। असल काम तब छोड़ा जाता है जब अफजल काम मिले। मैं मजलिस से शबीर पढ़ रहा हूं, मुझे दरवाजे से आके किबला इमरान मुजहरी साहब कहें, अलवी साहब मजलिस छोड़े, आए पहले चाय पिए। तो क्या मुझे मिंबर छोड़ना चाहिए? मैं कर रहा हूं अफजल काम, वो है कमतर काम। हाँ ये हो सकता है कि मैं चाय पी रहा हूं और मुझे आगे चाय छोड़े, मिंबर खाली है, वो इसके लिए छोड़ा जा सकता है, ये उसके लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अब शेखुपुरानी पंजाब का मजमा मेरी आंखों के सामने, इंसाफ करना। फरिश्ते कर रहे थे अल्लाह की इबादत, खुदा ने कहा तस्बीहां छोड़ो, ज़हरा से मांगो। फरिश्तों ने इबादत छोड़ के सैयदा के दरवाजे पे हाथ फैला के दुनिया को बता दिया, इसके दरवाजे पे मांगना फरिश्तों की इबादत से अफजल है। रोटियां मांगी गई। मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। जनाब ज़करिया ने कहा खाना कहां से आया? मतवज्जे है जी। जनाब मरियम ने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजा। हाथ में घर से लाई हसन भाई रोटी। ज़करिया देख के कहते मेरे मालिक तूने कहा था तू पाल, जब पालना मैंने था, खाना तूने क्यों भेजा? अगर मुझसे देर हुई है तो मुझे कल वक्त बताओ, किस वक्त पे खाना चाहिए तेरी बतूल को? उस वक्त पे जो ये चाहती है वो खाना पहुंचेगा, लेकिन कल से खाना मेरे घर से आएगा। आवाज़ परवरदिगार आई, नहीं ज़करिया तू नहीं खिलाएगा, मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही खिलाऊंगा। नतीजा यूं सरहद पे खड़ा, मैं ही खिलाऊंगा। मेरे मालिक तू क्यों खिलाए? मेरे मालिक तूने मुझे कहा है कि तू पाल, रहे भी तेरे घर में, खाए भी तेरे घर से, 2 वक्त की रोटी तेरी बतूल को मैं नहीं खिला सकता। आवाज़ परवरदिगार है ज़करिया तू नबी है, तू मेरा रसूल है, लेकिन तू खाना लेके आएगा घर से, खाना बनाएगी तेरी बीवी। तेरे ज़ौजा की हाथ की पकी रोटी मरियम के हलक के अंदर कैसे उतर सकती है जो अल्लाह एक वक्त की ज़करिया की बीवी की रोटी मरियम को नहीं खाने देता? अल्लाह जाने फातिमा बिन्त असद कौन थी, पकाती रही है, मुस्तफा खाते रहे।
जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक रहे तेरे घर में, खाए तेरे घर से, तो फिर मैंने क्या पाला? कफालत यही होती है ना, या रहायश दो या खुराक दो। रहायश भी तूने दे दी, खुराक भी तूने दे दी, तो फिर मैंने क्या पाला? आवाज आई ज़करिया देख, रहे मेरे घर में, खाए मेरे घर में, मैं कुरान में लिखवा दूंगा तुमने पाला। खर्चा मेरा, चर्चा तेरा। रखूंगा अपने घर में, खिलाऊंगा अपने घर से, दुनिया को बताऊंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। ये मजलिस में हर जाकर, हर खतीब मेजबान की हैसियत से है, हर एक बानी की हैसियत से। आप जितने भी आए हैं हमारे मेहमान हैं, हाथ बांध के कहने लगा नतीजा जाया न करना। खुदा ने कहा रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। बात मुस्तफा की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब रहेगा भी तेरे घर में, खाएगा भी तेरे घर में, मैं कहूंगा हमने पाला। वहां कह रहा है तुमने पाला। वहां कह रहा है तुमने पाला, यहां कह रहा है हमने। बैठी थी अल्लाह की कनीज, या फरिश्ते के परों की सरसराहट महसूस, कांप गई मरियम मुसल्ले पे। बतूल जो थी देखा थी कौन है, फरिश्ते की आवाज है, बीबी घबरा नहीं, अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का फरिश्ता भेजा हुआ रसूल हूं। क्यों आया है? तुझे रोटी देने नहीं, तुझे बेटा देने आया। पहले लेके आता था खाना, अब देने आया हूं बेटा। बीबी पूछ रही है तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। यहां मरियम से कह रहा है तुझे बेटा देने आया हूं। ज़हरा के दरवाजे पे गया, फिजा ने पूछा कौन है? कहता फरिश्ता हूं, रोटी लेने आया हूं। यहां देता है, वहां मांगता है, यहां देता है, वहां मांग। जमाने को अभी तक इरफान ही नहीं हो सका कि ज़हरा कहते किसे। किसी ने कहा मुस्तफ़ा की बेटी, किसी ने कहा अली की ज़ौजा, किसी ने कहा हसनैन की अम्मा। तौहीद के राज को बतूल कहते हैं, अल्लाह के छुपे हुए राज को बतूल, मशीयत इलाहिया को बतूल कहते हैं। कायनात की वो मुबल्लगा विलायत अमीर अल मोमिनीन जो कत्ल हुई है विलायत अली की तबलीग के जुर्म। हाज़री तमाम हुई, रात तक मजलिस जारी रहेगी। मुल्क भर के ज़ाकिरीन आपके सामने आके बारगाह इमामत में नजराना अकीदत पेश करें। सारी जिंदगी भी शिया रोते रहे, ज़हरा तेरा एक लम्हे दरबार में जाना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा। 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का 4 घंटे दरबार में खड़े होना एक तरफ। आज भी किसी नए शिया बंदे से पूछो क्या पढ़ के शिया हुआ, क्या सुन के शिया हुआ, वो कहता मुझे अली की तलवार ने शिया नहीं किया, मुझे हसन की सखावत ने शिया नहीं किया। फिर क्यों कलमा पढ़ा तूने अली वलीउल्लाह का? वो कहता मुझे शिया कर गया मोहम्मद की बेटी का दरबार में चला। मनाजरा हुआ था पिंडी भट्टियां के करीब। मनाजरे का मौजू था जनाजा रसूल हक के बतूल। शिया की तरफ से मनाजर थे मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम। मनाजरे का जज था एक अहले सुन्नत जमींदार, नाम था उसका चौधरी आशिक। सुन्नी था, दानश्वर था, फैसले लोगों के करता था अकल के मुताबिक। मनाजरे का जज उसे मुअय्यन इसलिए किया गया कि वो फैसला हक पे करेगा। जोहर तक मुनाजरा होता रहा। जोहर के वक्त जोहर की अजान हुई, नमाज का वक्फा हुआ। चौधरी आशिक अपने मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया। जितनी देर नमाज पढ़ता रहा रोता रहा।
नमाज खत्म हुई, नमाजियों से कहने लगा सारे मस्जिद से बाहर जाओ, मुझे मौलवी से तन्हाई में बात करनी। सारे नमाजी मस्जिद से बाहर भेज के मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई, अपने मौलवी के सामने बैठ गया। उसने देख मौलवी, हमारे घर गांव में है एक सैयदों का घर, वो अपने घर के अंदर रोते थे, तू हमें कहता था इन्हें को ना रोया करे। मैं एक दिन अकेला उनके घर गया था, मैंने जाके पूछा था सैयदों क्यों रोते हो? उन्होंने कहा था कि हमारी मां दरबार में गई थी। मौलवी, मैंने रात की तारीकी में तेरे घर आके तुझसे मसला पूछा था, तूने मुझे कहा था कि शिया झूठ बोलते हैं। मैंने उन सैयदों से कहा था इतना बड़ा इल्जाम तुमने कैसे लगा दिया कि रसूल की बेटी कहीं गई हो? उसने कहा हम अपना मौलवी बुलाते हैं, तू अपना मौलवी ले आ। उन्होंने बुला लिया है अपना मौलवी, वो बैठा है डेरे पे किताबें लेके। मुझे इन किताबों की समझ नहीं आ रही, तू किताब दिखाता है वो दिखाता है, मुझे नहीं समझ आ रही इन किताबों में क्या लिखा है। ये भी तो आखिर मौलवियों ने लिखी है। मेरे जहन में एक सवाल है, मुझे उसका जवाब दे, मैं मुनाजरा खत्म करूं। मौलवी ने कहा क्या सवाल है? चौधरी आशिक ने रोके कि मुझे सिर्फ इतना बता, मेरी नबी की दरबार गई थी? मैंने ये नहीं पूछा किस किताब में क्या लिखा है, सिर्फ इतना बता गई थी? उसने कहा चाचा आशिक नबी की बेटी का बनता नहीं था। उसने कहा बनता छोड़, गई थी। उसने कहा नबियों का विरसा कोई नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, गई थी। उसने कहा हदीसें कहती हैं नबी जगीरें छोड़ के नहीं जाते। उसने कहा सब कुछ छोड़, बता गई थी? उसने कहा हाँ चौधरी आशिक गई थी। रो के जिगर पे हाथ रख के कहता है अब मुझे बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा किताबें लिखती हैं वापस खाली चली गई थी। रो के कहने लगा मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे जाए और रा के कहे मैं चौधरी आशिक की बेटी हूँ, मुझे बताओ खाली भेजोगे या दे के भेजोगे? क्या लगा दे के भेजेंगे बेटी जो तेरी है। रो के ना मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने हया नहीं किया। चली जो गई थी, नहीं भी बनता था, फिर भी कह देते कि बाप के बाद पहली बार आई है, खाली तो ना भेजते। दरवाजा खोला, रोता हुआ वहां गया जहां मुबल्लिग आज़म बैठे थे, पगड़ी उतार के मौलवी इस्माइल के कदमों में फेंक, हाथ बांध के बंद कर इस्माइल किताबें, मुझे पता चल गया कि नबी की बेटी खाली आई है। ये कहने के बाद उसने जो अगली बात की, शिया कौम के मरने के लिए है, रोने के लिए नहीं, कफन में रोना, इस बात को याद करके। पी नासिर बुखारी साहब हाथ बांध के कहने लगा मौलवी इस्माइल ये हमारे गांव का सैयद तेरे पास बैठा है, दोनों मिलकर मशवरा करके मुझे बताओ उस जगीर की कीमत कितनी थी? जितनी कीमत बनती है मैं जमीनें बेचूं, मैं बेटियों के जेवर बेचूं, मैं उतने पैसे लाके इन सैयदों के घर दूं ताकि ये सैयद तो अपना रोना बंद करे। इतना कहना था। मौलाना इस्माइल ने चीखे मार के हम जगीर को नहीं रोते। उसके फिर किस बात में रो रहे हो? मौलवी इस्माइल रो के कहते चौधरी आशिक जब दरबार में गई सर के बाल काले